हाँ जी बेटे, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਟੋਰੇਜ ਰੂਟਸ ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਟੋਰੇਜ ਰੂਟਸ। ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਜਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਿੰਜਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਦ modified root, that is the example of stem। ठीक है, modified roots मैं हुण दोबारा ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲਾ ਦੱਸੂਗੀ ਪਾर्ट, फिर ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਰੂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰਟ ਹੈ, ਰੈडिश है, टर्निप है एंड अपना मोस्ट प्रोबेबली स्वीट पोटैटो है जेड़ा शकरकंदी है ना, ये सारे आंदे स्टोरेज के अंदर। क्योंकि देखो उन्हां दी शेप है जेड़ी दैट इज जस्ट लाइक द टैप रूट। अगर आप कैरेट की गल करिए तो जस्ट लाइक दिस, ऊपर एक स्वोलन पार्ट है, वो ग्रीन कलर की स्टेम है, ਇਹਦੇ ऊपर हेयर्स भी प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली रेडिश है जेड़ा वो अपने को कुछ इस तरीके का होंदा, उपरों दी थोड़ा जिहा विचालों दी ज्यादा मोटा होंदा है, कुछ इस तरीके दा, ਇਹਦੇ ऊपर भी हेयर्स प्रेजेंट होंदे हैं। टर्निप है जेड़ा वो अपने को कुछ इस तरीके दी स्ट्रक्चर होंदी है, ਇਹਦੇ ऊपर भी हेयर्स, यानी कि ਜਿਹਦੇ ऊपर एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट ने ते वो स्टोरेज का काम भी कर रहे हैं, बट ਉਹਦੀ शेप है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਟੈਪ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜੈਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਰੂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਜਰ ਵਾਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਪੋਟੈਟੋ ਵਾਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗਾ, दैट ਕਮਸ ਅੰਡਰ ਦਾ ਸਟੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਦੈਨ ਆਈ ਥॉट ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਈ ਕਵਰ ਇਟ ਅਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਰੂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੈडिश, ਕੈਰਟ, ਟਰਨਿਪ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਸਟੈਮਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਣਗੇ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਗਾਰਲਿਕ, ਜਿੰਜਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ। ਕੱਲ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਲੀਵਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਲੀਫ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ, ਲੀਫ ਲੈਮਿਨਾ, ਲੀਫ ਬਲੇਡ, ਲੀਫ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਡੰਡੀ ਹੈ ਪੀਟੀਓਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਿਨੇਸ਼ਨ, the pattern of the veins and veinlets on the leaves is called as the venation। फिर ਆਪਾਂ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ टाइप्स of leaf, जिनके अंदर मैं ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ simple leaf and compound leaf। compound leaf ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, pinnately and palmately compound leaf। clear? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ phyllotaxy, that is the arrangement of the leaves on the axis। ठीक है, midrib ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ leaves ਦਾ arrangement ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। we had done 3 alternate, opposite and world ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। alternate ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਲੀਫ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੀਫ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੈ, और opposite ਦਾ मतलब है दोनों एक दूसरे ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, opposite है। and world ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, that was the world। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟੇ modifications of the leaf। modifications of leaves। modification of leaves ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, we have is the tendril and spines। ਕੁਝ leaves ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ modify ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, into the two structures, one is called as tendril। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਨਰਲੀ ਮਟਰ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਫ ਹੈ, this is the leaf, ਲੀਫ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ, this is called as tendril। tendril ਆਪਾਂ ਸਟੈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਬਟ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 10th ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਆਰਗਨਸ ਐਂਡ ਐਨਾਲੋਗਸ ਆਰਗਨਸ। ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਆਰਗਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਰਗਨ ਵਿਚ ਆਰ ਸਿਮਿਲਰ ਇਨ ਸਟਰਕਚਰ ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨ origin, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਆਰਗਨ। ਸਟੈਮ ਟੈਂਡਰਲ ਐਂਡ ਲੀਫ ਟੈਂਡਰਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਦੇਖਣ ਚ ਸੇਮ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬਟ ਦੋਨਾਂ ਦਾ origin ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਐਨਾਲੋਗਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ origin ਸੇਮ ਹੋਏ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ डिफरेंट होए। ठीक है,
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ 1 ਮਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਟੈਮ ਟੈਂਡਰਲ ਤੇ ਲੀਫ ਟੈਂਡਰਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, whether they are homologous organs or whether they are analogous organs, ठीक है। तो this is the modification of the leaf one into the tendril। sometime leaves ने जेड़े वो अपने आप को modify कर लेंदे हैं for the leaves ने जेड़े they are oftenly modified to perform the functions other than photosynthesis, then वो plants ਦੀ climbing up ਦੇ ਅੰਦਰ help ਕਰਦੇ हैं, ठीक है। तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ tendril। example ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ pea plant। pea plant ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ leaf ਹੈ ਉਹਦਾ axis ਹੈ ਜਿਹੜਾ मतलब ਉਹਦਾ final ਜਿਹੜੀ structure ਹੈ ਉਹ tendril ਦੇ ਅੰਦਰ convert ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, clear। next ਹੈ ਬੇਟੇ spines। ਸਪਾਈਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਮ ਹੈ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸਟੈਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨॉन ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਟੈਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੈਕਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਕੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੀਵਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੀਰੇਟ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੀਰੇਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂ? क्योंकि वो डेजर्ट प्लांट है, तो अगर वो ट्रांसपीरेट करूगा तो ओदा वाटर जिहड़ा ओदे कोल ऑलरेडी प्रेजेंट है वो भी लूज हो जाऊगा। यस, तो इस करके बेटे कैक्टस के ऊपर जिहड़े लीव्स ने वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेंदे हैं इनटू द स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर। तब एग्जांपल भी क्लियर होगी, स्पाइन भी क्लियर हो गया। मतलब एक नुकीली स्ट्रक्चर दे अंदर कन्वर्ट कर लेना नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर दे अंदर, ताकि ओदा फोटोसिंथेसिस दे नाल कोई लेना देना ना रहे। इथे अपना सिर्फ फोटोसिंथेसिस नहीं हैगा, द सेकेंडरी फंक्शन और द मेजर फंक्शन इन द डेजर्ट प्लांट्स इज टू स्टॉप द एक्स्ट्रा ट्रांसपीरेशन। तो ये अगर ये ब्रॉडन लीफ होगा तो ट्रांसपीरेशन भी करूगा, तो ट्रांसपीरेशन ना होए इस करके लीफ अपने आप को मॉडिफाई कर लेंदा है इनटू द स्पाइन। लीफ की मॉडिफिकेशन किस दे अंदर होगी? स्पाइन दे अंदर होगी। क्लियर है बेटा जी सब नु? ओके, तो अपने मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स दे अंदर है स्पाइन्स एंड टेंड्रिल्स। इस तो बाद है स्पाइन दी एग्जांपल अपने कैक्टाई दे अंदर कीती। एक और है बेटे मॉडिफिकेशन दे अंदर थर्ड मॉडिफिकेशन। फर्स्ट मॉडिफिकेशन टेंड्रिल, सेकंड मॉडिफिकेशन है स्पाइन, थर्ड मॉडिफिकेशन है स्टोरेज। कैन यू इमेजिन जो आप अनियन खाने आ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲੀਵਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟੂ ਸਟੋਰ ਦਾ ਫੂਡ ਇਨ them। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈਟ ਪਾਰਟ ਉਹਦਾ ਰਿਡਿਊਸਡ ਸਟੈਮ ਹੁੰਦਾ, that is the stem of the onion। ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਹੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਲਬ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ this is reduced stem। ए दे एडवेंटिशियस हेयर्स हो गए, रूट्स हो गया, ए दा फ्लैशी पार्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड एज द लीफ हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द फूड। स्टोरेज लीव्स जिन्होंने ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ फ्लैशी लीव्स कह सकते हो। कई बारी ਜਿਹੜੇ लीव्स ने वो अपने ਕੋਲ फ्लैशी पार्ट ਦੇ ਅੰਦਰ कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। फ्लैशी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक दे स्टोर द फूड। क्लियर? इस तो इलावा अपने ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? पिटियोल्स। कुछ प्लांट्स ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਅਕੇਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਟਿਓਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਵੈਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਲੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਪਿਟਿਓਲ ਹੈ, ਆ ਲੀਫ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਨ ਸਮ ਆਫ ਦ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਟਿਓਲ ਹੈ ਇਹ ਸਵੈਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੀਫ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। दैट इज द एग्जांपल इज द ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। द लीव्स आर स्मॉल, short lived। The petiole in these plants expand, the green they will become green and they will synthesize the food। क्लियर है? इस तो इलावा है बेटे कुछ प्लांट्स दे अंदर, तो दिस इज द फर्स्ट मॉडिफिकेशन टेंड्रिल। सेकंड मॉडिफिकेशन सीगी अपने कोल स्पाइन्स। थर्ड मॉडिफिकेशन है अपने कोल स्टोरेज।
फोर्थ मॉडिफिकेशन है जदों लीव्स शॉर्ट लिव्ड होन। जे लीव्स मर जाएंगे तो प्लांट फोटोसिंथेसिस किवें करूगा, तो ओदा पिटियोल ही अपने आप नू स्वेल करा लैंदा, लीफ उत्तों दी गिर जे तां भी ओह ग्रीन रह के फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करदा रहिंदा है। ठीक है, उस तो बाद अपने को फिफ्थ मॉडिफिकेशन ते आ जाओ बेटे। ये हैव इज द फिफ्थ मॉडिफिकेशन। कुछ प्लांट्स के अंदर की हुंदा है जिन्होंने पिक्चर प्लांट कह देने या इंसेक्टिवोरस प्लांट कह देने, वो अपना फूड है जिहड़ा वो हेट्रोट्रॉफ्स की तरह लेंदे हैं, मतलब वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैगे। तो उन्हां दे अंदर जिहड़े लीव्स ने वो कुछ इस तरीके दे अंदर, मतलब प्लांट जिहड़ा लीफ है वो अपने आप नू एक तरह दा कुछ ओदा ढक्कन की तरह मॉडिफाई कर लैंदा है। क्लियर, जिवें ही इंसेक्ट अंदर आया उन्होंने लग्या भी दिस इज वेरी ब्यूटीफुल काइंड ऑफ द फ्लावर, तां लीफ उपरों दी बंद हो जांदे, ओदे अंदर कुछ एवें दियां सेंसेस हुंदियां ने कि लीफ उपरों दी बंद हो गया, इंसेक्ट अंदर ही मर जांदा है। इंसेक्ट दी बॉडी दे अंदर जो भी प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, वो प्लांट अपने न्यूट्रिशन लई यूज करूगा। ठीक है, तो दैट इज द मॉडिफिकेशन इन केस ऑफ द पिक्चर प्लांट, या जिन्हों वीनस फ्लाई ट्रैप है जिहड़ा ओदे अंदर लीव्स ने जिहड़े कुछ इस तरीके दे नाल मॉडिफाई हुंदे ने कि वो इंसेक्ट्स नू अंदर ट्रैप कर सकन। क्लियर है बेटे, तो आपां 5 मॉडिफिकेशंस कीतियां ने लीफ दे केस दे अंदर, ते आपां रूट दे केस दे अंदर कीतियां सीगियां ऑलमोस्ट 4 मॉडिफिकेशंस। ठीक है, स्टोरेज रूट्स कीता सीगा, फिर उस तो बाद क्रॉप रूट्स कीता सी, स्टिल्ड रूट कीता सी, न्यूमैटोफोर्स कीता सी। याद रखियो पेपर दे अंदर जो क्वेश्चन आंदा है वो तुहानू ज्यादातर मॉडिफिकेशंस जो ही आंदा है, चाहे वो लीफ दी मॉडिफिकेशन है, चाहे वो स्टेम दी मॉडिफिकेशन है, चाहे वो रूट दी मॉडिफिकेशन है। ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग मोर ऑन द मॉडिफाइड पार्ट्स ऑफ द रूट, स्टेम एज वेल एज लीफ। क्लियर है, तो लीफ दे अंदर पहले तो क्लियर हो गए होंगे कि लीफ जिहड़ा है वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेंदा है टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर, ताकि प्लांट को ऊपर चढ़न दे अंदर हेल्प मिले। ज्यादातर ये बेला वाले प्लांट्स दे अंदर हुंदे, समझ गए, जिहड़े कि प्लांट्स ने ऊपर जाना हुंदा। फिर उस तो बाद अपने कोल सीगा सेकंड स्पाइन्स, जिन्हां दे लीव्स और प्लांट चाहता है कि मेरे लीफ ट्रांसपिरेशन ना करे, तो लीफ अपने आप नु थॉर्न दे अंदर, स्पाइन दे अंदर कन्वर्ट कर लेंदा है। ठीक है, दैट इज द सेकंड स्टोरेज, फूड स्टोर कर लिया। फोर्थ अपने को है कि लीफ शॉर्ट लिव्ड है, इस करके फोटोसिंथेसिस का फंक्शन पिटियोल ही अपने आप नु ग्रीन रखदा है, दैट विल बी द परफॉर्म्ड बाय द फोर्थ स्ट्रक्चर। एंड द फिफ्थ इज द फ्लाई ट्रैप। ठीक है, एंड द पिक्चर प्लांट। उस तो बाद है बेटे अपने को नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अगेन, दैट इज द इनफ्लोरेसेंस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल इंपॉर्टेंट है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस की हुंदे बेटे, इनफ्लोरेसेंस का मतलब हुंदे जदों when a flower is a modified shoot wherein a shoot is a apical meristem that changes into the floral meristem। ठीक है, जदों अपने को जिहड़ी स्टेम है वो अपने आप नु फ्लावर दे अंदर कन्वर्ट कर ले। ठीक है, जबकि फ्लावर की सीगी वो मॉडिफाइड शूट ही सी। ठीक है, तो अपने कोल की हो गया, व्हाट वी हैव इज द जदों इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड, जदों किसी प्लांट के ऊपर जिहड़ा प्लांट है ओदियां इंटरनोड्स नहीं आईयां, स्टेम है जिहड़ी ओदे ऊपर नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट हुंदियां ने, है ना। आपां एक लेक्चर दे अंदर सुनिया भी सी, मैं ही दस्सिया सीगा फर्स्ट लेक्चर दे अंदर, बट आपां स्टेम दोबारा करांगे, मैं दोबारा भी दसूंगी। स्टेम दे अंदर स्टेम की है, एक प्लांट दी स्ट्रेट स्ट्रक्चर है की है जिहड़ी कि प्लीम्यूल तो अराइज हुंदी है, ओदे ऊपर नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट हुंदे हैं। नोड्स की हुंदे ने, नोड वो स्ट्रक्चर है जिथों दी स्टेम अराइज हुंदी है, इंटरनोड की है जिथों दी दूसरी स्टेम अराइज होगी, उन्हां दोनों दे अंदर दा जिहड़ा डिस्टेंस है उन्हों आपां इंटरनोड कहने आ। हुण मेरे कोल फ्लावर की हुंदा है, मॉडिफाइड शूट है, शूट ने अपने आप नूं एक एक्सिस दे ऊपर जाके मॉडिफाइड कीता, ओदे ऊपर फ्लावर लग गया। हुण मेरी स्टेम ही जदों इत्थे मेरे कोल की होया, इस जगह ते इनफ्लोरेसेंस की है कि मेरी जिहड़ी स्टेम है ओने नोड्स, ओने इंटरनोड्स ने जिहड़ियां ओ ज्यादा नहीं बनाईयां, ओने अपनी ग्रोथ नूं कुछ हद तक कंडेंस कर लिया। ठीक है, इत्थे ही इहदे ऊपर फ्लावर्स ने जिहड़े ओ आने
स्टार्ट हो गए, दैट इज कॉल्ड एज द इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, द एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ द फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एंड सक्सेसिव नोड्स instead of the leaves. ठीक है, the arrangement of the flowers on the floral axis is called as the inflorescence. ठीक है, the arrangement of the flowers on the floral axis is called as the inflorescence. Clear? Inflorescence बेटे दो तरह की होती है, we have is the racemose and cymose. Racemose होती है the arrangement of the flowers, इसकी definition है arrangement of flowers on floral axis. ठीक है, inflorescence very important definition, दो तरह की है, racemose and cymose. ਜਿਹੜੀ racemose ਹੁੰਦੀ है ना बेटे, ਇਹ ਕੀ है, आ मेरी stem है, ਇਹ इंटरनोड आई, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ flowers आने शुरू हो गए। ठीक है, फ्लावर्स फ्लावर्स फ्लावर्स, फिर अगे गया, फिर फ्लावर्स फ्लावर्स फ्लावर्स, इथे भी फिर अगे गया, फिर फ्लावर्स फ्लावर्स फ्लावर्स, ये रेसिमोस है। ठीक है, पता ही नहीं चल रहा किथों दी फ्लावर्स आ रहे ने, लीव्स आ रहे ने। ठीक है, पूरा भरिया होया, मतलब प्लांट ऊपर तक ग्रो करी जा रहा है, ਉਹਦੇ नॉड्स एंड इंटरनॉड्स ਦੇ ਉੱਪਰ फ्लावर्स आ रहे हैं। क्लियर, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, साइमोस। साइमोस ਹੁੰਦਾ है कि एक टिपिकल एक्सिस तक, जिवें मैं पहले बनाया सीगा, टिपिकल एक्सिस तक प्लांट की ग्रोथ हुई, उस तो बाद उन्हें अपनी लेटरल ब्रांचेस दे ऊपर फ्लावर्स ग्रो कराए एंड मीन हाउ सम हाउ ਇਹਦੇ मिडल दे अंदर भी एक फ्लावर आ गया, बट इस तो बाद होर ग्रो नहीं करूगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज, मतलब ਇਹਦੀ ग्रो, ਇਹਦੀ लेंथ की होगी, एक लिमिटेड काइंड ऑफ लेंथ होगी, तो ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, that is the cymose kind of the inflorescence. clear है, the मेरे को racemose की होंगे the type of the inflorescence in which the main axis continues to grow, the flowers are born laterally in an acropetal succession. ठीक है, प्लांट एवें ग्रो कर रहे हैं, एवें। ठीक है, ऊपर सब तो यंग फ्लावर्स ने, नीचे नीचे आउंगे तो अपने को ओल्ड फ्लावर्स ने जेडे ओह प्रेजेंट होंगे हर नोड ते, हर इंटरनोड दे ऊपर। ठीक है, जेडे सब तो कुछ इस तरीके दे नाल, सब तो नीचे वाले फ्लावर्स। ठीक है, दिस इज द रेसिमोस काइंड ऑफ द इनफ्लोरेसेंस। साइमोस मैं हुणे दस्या, दिस इज द टाइप ऑफ द इनफ्लोरेसेंस जिहदे अंदर मेन एक्सिस है जेड़ा वो टर्मिनेट कर जांदा है इट्स ग्रोथ, अपनी ग्रोथ नु एक लिमिटेड ऑर्डर तक रख के ओह दो एक्सिस दे ऊपर फ्लावर ग्रो करा लेंदा है। मीनवाइल पहले वो लेटरली ग्रो करांदा है, फिर वो अपने सेंटर दे ऊपर भी फ्लावर ग्रो करा लेंदा है। दैट इज कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। ठीक है बेटा जी, ओके। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਫਲਾवर, ਆਪਾਂ ਸਟੈਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਮੂਵ ਟੁਵਰਡ ਦਾ ਫਲਾवर, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਲਾवर ਦੀ ਜਿਹੜੀ पूरी ਦੀ पूरी ਜਿਹੜੀ ਫਲਾवर ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਵਾਈਂਡ ਇਟ ਅਪ। ਠੀਕ ਹੈ, in one class। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ stem and stem modification। stem ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। stem ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ, one ਇਹ grow ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, stem from where it grows, and what is the stem? stem ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ seed ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ seed ਹੈ, ਇਹ seed ਦਾ ਐਮਬ੍ਰੀਓਨਲ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ प्लीम्यूल है, नीचे वाला हिस्सा रेडिकल है। जो ਇਹਦਾ प्लीम्यूल वाला हिस्सा है ਉਹ स्टेम ਦੇ अंदर कन्वर्ट ਹੁੰਦਾ है। स्टेम इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो आप एंजियोस्पर्म्स कह दिंने आ, या अपने कोल बड़े प्लांट्स ने,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਨ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਏਰੀਅਲ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰਬਸ ਨੇ, ਸ਼ਰਬਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੈਮ ग्रीन ही रहती है। क्लियर है? तो स्टेम दी मेन खासियत की है, स्टेम के ऊपर कुछ कुछ डिफरेंस तो बाद नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। व्हाट आर नोड्स? नोड ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, दिस इज ए नोड। नोड ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਗਰੋ ਕਰੂਗੀ, from where the new axis will grow on the stem, that is a node। सेकेंड ए भी नोड है, दिस इज ऑल्सो ए नोड जिथे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, इथे दा नवा एक्सिस स्टार्ट हो गया। दो नोड्स दे विच दा डिस्टेंस है जेड़ा, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनोड और इंटरनोडल डिस्टेंस, इंटरनोड कह लो, ठीक है। दिस इज नोड, दिस इज नोड, इधरले पासे भी तो होगी। दो नोड्स दे विच दा डिस्टेंस नु ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ इंटरनोड। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਮੈਂ जिंजर ਦੀ एग्जांपल ਗਲਤੀ ਨਾਲ रूट ਚ ਲੈਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ जिंजर ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਪੈਜ਼ਰਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਜਨਰਲੀ ਦੇਦੇ ਆ ਕਿ ਤੋਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗੇ ਬ੍ਰਾਊਨ ਜੇ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। तो स्टेम क्यों है? क्योंकि ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट ने, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਵੀ प्रेजेंट ਹੁੰਦੇ। they are the adventitious roots, that is the difference between the storage root and storage stem। clear है? storage root ਕੀ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਟੈਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ adventitious hairs ਨੇ ਜਿਹੜੇ, roots ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ present ਸੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਡਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੋਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ। ਪੋਟੈਟੋ ਟਿਊਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਟੈਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਈਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਸਟੋਰੇਜ ਰੂਟ ਐਂਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਟੈਮ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਟੈਮ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਟੈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਸਟੈਮ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲੀਵਸ, ਫਲਾਵਰਸ, फ्रूट्स ने जेड़े ओ लगदे हैं, एज वेल एज जेड़े जर्मिनेटिंग सीड्स ने ओ भी ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ, क्योंकि अगर फ्रूट ਇੱਥੇ तो फ्रूट ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ सीड प्रेजेंट होगा ना। अगर फ्रूट स्टेम ਦੇ ਉੱਪਰ है तो फ्रूट ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ सीड प्रेजेंट ਹੁੰਦੇ। यस और नो? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੈਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਾਈਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਟ ਅਰਾਈਜ਼ ਫਰਮ ਦ ਪਲੇਮਿਊਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਜਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਸੀਡ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਨੋਡਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੋਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਨੋਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਰੀਜਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟੈਮ ਤੋਂ ਲੀਵਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਰੀਜਨ ਨੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋ ਨੋਡਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਸਟੈਮ ਬੀਅਰਸ ਬਡ which may be terminal or which may be axillary। कई बारी stem ਦੇ axil ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, axillary buds ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ present ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। or which we can say axillary buds ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ stem ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਾ ਲੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੀਫ ਦੇ axil ਦੇ ਅੰਦਰ axillary bud present ਹੈ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਐਕਸਿਲਰੀ ਬਰਡਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। that must be the stem tendril, ठीक है। मैं ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਲੀਫ ਟੈਂਡਰਲ ਐਂਡ ਸਟੈਮ ਟੈਂਡਰਲ। ਐਕਸਿਲਰੀ ਬਡ ਅਰਾਈਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਲੀਫ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਸਟੈਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਟੈਂਡਰਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ that will be the part of the modified stem। क्लियर है? तो हुन डिफरेंस क्लियर हो गया। व्हाट इज द स्टेम टेंड्रिल एंड व्हाट इज द लीफ टेंड्रिल? लीफ टेंड्रिल है लीफ दा ही एक्सिस उपरों दी मॉडिफाई होया। स्टेम दे अंदर की है जिहड़ा एक्सिलरी बड है ओने अपने आप नु मॉडिफाई कर लिया। हुन दोनों दा ओरिजिन डिफरेंट हो गया। ओरिजिन डिफरेंट हुंदे तो किहड़े ऑर्गन्स हुंदे ने which have the different origin, analogous but similar in function। clear है बेटे? okay, तो they are the analogous organs, stem tendril and leaf tendril। okay, हुन आजो बेटे we have is the functions of the stem। stem दे functions की ने बेटे? stem generally अगर green in color है तो photosynthesis perform करती है।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਨॉन ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਟੈਮ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਬੀਅਰਸ ਫਲਾਵਰਸ, ਇਟ ਗਿਵਸ ਸਪੇਸ ਟੂ ਗਰੋ ਦ ਫਲਾਵਰਸ, ਲੀਵਸ एंड अदर एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, अपने आप ਨੂੰ एज अ बेस बना के प्लांट ਦੇ पार्ट्स ਨੂੰ ग्रो कराने ਚ हेल्प करती है। एज वेल एज ਇਹਦਾ ਇੱਕ बेसिक मेन फंक्शन है समटाइम्स stem also helps in the vegetative propagation। अगर आप stem ਦੇ functions देखिए, पहला stem ਦੀ definition आई, stem ਦੇ functions ਦੇ अंदर आया if stem is green then it will perform photosynthesis. If it is non-green then it will not perform photosynthesis, no photosynthesis will be there। second function की आ गया बेटे मेरे को, first function was this, second function मेरे को आ गया कि stem है ਜਿਹੜੀ ਉਹ एरियल parts ਨੂੰ अपने ऊपर bear करती है, यानी कि जो भी leaves ने, जो भी flowers ने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपने ऊपर grow करा ਲੈਂਦੀ है। ठीक है, एंड मोस्ट हाउ समटाइम्स स्टेम है ਜਿਹੜੀ अपने आप ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ टू स्टोर द फूड। ठीक है, फूड स्टोरेज ਦੇ ਅੰਦਰ हेल्प ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਜਿੰਜਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। क्लियर। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्टेम आल्सो हेल्प्स इन द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ 10th क्लास ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? कुछ प्लांट्स ਦੇ सीड्स नहीं ਹੁੰਦੇ ना, अगर उन्होंने सीड्स नहीं होंगे तो अपने ही बॉडी दे किसी पार्ट तो वो ग्रो कर जाते हैं। इन सम ऑफ द पार्ट प्लांट्स दैट पार्ट कुड बी द स्टेम। फॉर एग्जांपल रोज दे अंदर आप स्टेम कटिंग करते हैं, शुगर केन दे अंदर स्टेम कटिंग होंगी है। क्लियर है। कुछ दे अंदर लीव्स हेल्प करते हैं, लाइक ब्रायोफाइलम्स दे अंदर लीव्स हेल्प करते हैं, जिन्होंने पत्थर झट कहने आ। तुसी पत्ते नूं मिट्टी दे अंदर सुट दो, थोड़े दिनों बाद वो देखियो अपने आप ही अपनी रूट्स ग्रो करनिया स्टार्ट कर देंगे एंड इन सम ऑफ द डेज वो पूरे प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है बेटा जी, तो स्टेम्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ हेल्प ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, somehow photosynthesis ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ हेल्प कर ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾर्ट्स ਨੂੰ ਬੀਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ and somehow they helps in the storage of the food also। क्लियर है बेटे। उस तो बाद आ जाओ बेटे modifications of the stem। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम दे अंदर आ जाओ। फर्स्ट मॉडिफिकेशन है ਜਿਹੜੀ स्टेम है बेटे ਉਹਦਾ मेन फंक्शन ਹੁੰਦਾ है कि ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, स्टेम ਕੀ ਕਰੇ, अपने ਕੋਲ पार्ट्स ਨੂੰ बीयर करे। मॉडिफिकेशन ਦੇ ਅੰਦਰ फर्स्ट है कई बारी स्टेम है ਜਿਹੜੀ ਉਹ अपने आप ਨੂੰ मॉडिफाई कर लेंगे। स्टेम ਦਾ कुछ पार्ट अंडरग्राउंड भी प्रेजेंट ਹੁੰਦਾ है। इफ दिस इज ए प्लांट, ए दी रूट है, ए दी कुछ स्टेम बाहर है, वो तो स्टेम ही स्टेम है, कुछ स्टेम दा पार्ट मैं कल रूट च भी दस्या सीगा, समटाइम्स स्टेम दा ही कुछ पार्ट अंडरग्राउंड भी रह जाता है। ठीक है, ओदे ऊपर स्टेम अपने आप नु मॉडिफाई करती है टू स्टोर द फूड। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, फर्स्ट इज अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। अगर किसी ने भी पोटैटो का प्लांट देखिया, नहीं देखिया तो जरूर देखियो, जो बच्चे विलेजेस दे तो बिलोंग करते हो या बाकी उन्होंने अपनी सहेलियां नु, अपने फ्रेंड्स नु दिखाइयो। अंडरग्राउंड स्टेम है जेड़ी ਇਹ अपने आप नु मॉडिफाई कर लेंदी है टू ग्रो द, टू स्टोर द फूड इन इट। पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम अपने आप नु फूड की स्टोरेज दे लई मॉडिफाई कर लेंदी है। फॉर एग्जांपल इज पोटैटो। क्लियर है बेटे। अंडरग्राउंड स्टेम क्लियर। तो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन दे अंदर अपने को एग्जांपल है पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जिमीकंद। सबनू पता होगा ना जिमीकंद पता है ना, आलू वर्गा ही हुंदा पर थोड़ा हैपहैजर्ड जा हुंदा है। ठीक है, तो जिंजर भी ओदी एग्जांपल ही है। वी हैव इज जिंजर, पोटैटो, जिमीकंद, टर्मरिक। टर्मरिक आई थिंक किसी ने नहीं देखा हो सकता है।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ these three are ਆਪਾਂ ਟਰਮੈਰਿਕ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਲਾਂਟ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਸਟੈਮਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਮੈਰਿਕ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਟਰਮੈਰਿਕ। ਤਾਂ ਟਰਮੈਰਿਕ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਈ ਵਿਲ ਸੈਂਡ ਇਟ ਇਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा, ठीक है। उस तो बाद है बेटे नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज द स्टेम है जेडी और सम टाइम प्लांट दी क्लाइंबिंग अप दे लई टेंड्रिल दे अंदर भी कन्वर्ट हो जाती है। सेकंड मॉडिफिकेशन इज एरियल मॉडिफिकेशन, कह लो अपर पार्ट के अंदर आ गया एरियल मॉडिफिकेशन दे अंदर टेंड्रिल। टेंड्रल किस हेल्प करता है, प्लांट ਨੂੰ सपोर्ट ਦਿੰਦਾ ਹੈ ताकि ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਂਡਰਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਕਸਿਲਰੀ ਬਡਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਲਾਂਟ, ਇਹਦਾ ਲੀਫ ਗਰੋ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਵਾਟਸੋਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਗਰੋ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਐਕਸਿਲਰੀ ਬਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਿਲਰੀ ਬਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਇਨਟੂ ਦਾ ਟੈਂਡਰਲ। ज्यादातर ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਡ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਗੋਡ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕੱਦੂ, ਟਿੰਡੇ, ਤੋਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੋਡ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਰਿਚਡ ਗੋਡ, ਬਿਟਰ ਗੋਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਦੂ, ਟਿੰਡੇ, ਤੋਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਲਾਈਂਬ ਕਰਨ ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਲਾਈਂਬ ਕਰਨ ਚ ਟੈਂਡਰਲਸ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ, ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਟੂ ਗਰੋ ਅਪਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਟੈਂਡਰਲ which develop from the axillary bud, they are cylindrical spirally coiled structure that helps the plant to climb up। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ gourd family ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ cucumber, pumpkin, watermelon, grapevine, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ auxiliary bud ਹੈ of the stem that could be modified into a thorn like structure, tendril ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ second, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ aerial ਚ ਆ ਗਿਆ, that is modified into thorn like structure। ਆਹੀ ਐਕਸਿਲਰੀ ਬਡ ਹੈ, ਆ ਲੀਫ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਾਈਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਈ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫॉर एग्जांपल we have is the, ਅਗਰ ਸਿਟਰਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿੰਬੂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਐਕਸਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਹਨਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਬੇਬੀ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਥੌਰਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੌਰਨਸ ਜਿੱਥੇ ਥੌਰਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਾਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਈਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਥੌਰਨਸ ਆਰ देयर ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦਾ ਪਲਾਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਸਿਲਰੀ ਬਡ ਹੀ ਹੈ जो टेंड्रल दे अंदर कन्वर्ट हो जाती है, एक्सिलरी बड ही है जो कि थॉर्न दे अंदर कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है बेटा जी। उस तो बाद अपने को आ गया बेटे सिट्रस फैमिलीज दे अंदर थॉर्न्स ने। इस तो बाद है बेटे कुछ प्लांट्स दे अंदर ਜਿਹੜੀਆਂ स्टेम्स ने वो अपने आप ਨੂੰ कुछ इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਕ ਉਹ ਵੀ एरियल दे अंदर एरियल मॉडिफिकेशन ची आ गया, थर्ड मॉडिफिकेशन इन द एरियल अपन हुने करके आए कैक्टस दे अंदर करके आए, स्टेम ने अपने आप ਨੂੰ मॉडिफाई ਕੀਤਾ कि मैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करूंगी, लीफ ने अपने आप ਨੂੰ मॉडिफाई ਕੀਤਾ कि मैं ट्रांसपिरेशन नहीं होने दूंगा, ओके। तो स्टेम ने अपने आप ਨੂੰ मॉडिफाई कर लिया कि I'll remain green in color, I'll be fleshy and I'll perform photosynthesis, ठीक है। That is the example in the cacti or cactus, ठीक है। cactus ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ example ਹੈ। लीफ ने अपने आप ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ modify ਕੀਤਾ, लीफ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ transpiration
नहीं करूंगा। आप हुणे ही डिस्कस करके आए हैं। तो सेम टू सेम जदों स्टेम अपने आप नो इन सम ऑफ द प्लांट्स जिहड़ी अपनी स्टेम है वो अपने आप नो मॉडिफाई कर लेंदी है, दैट इज कॉल्ड एज फॉर द फंक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो उन्होंने आपां कहने आ दैट इज द मॉडिफाइड स्टेम फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये अपने को होंगे कैक्टस दे अंदर। ठीक है, इस तो बाद है बेटे वी हैव इज कुछ प्लांट्स दे अंदर होर की हुंदा है जेडे अंडरग्राउंड है, मैं तुहानू दस चुकी हां। अंडरग्राउंड ब्रांचेस ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੂਡ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਫਰੂਟਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਾਈਲੋਕਲੈਡ ਐਂਡ ਫਾਈਲੋਡ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, photosynthesis that is not given in the NCERT। phylod and phyloclad आ जाता है। phylod ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਰੋਡ ਸਾਈਡਸ ਤੇ बिना पानी तो प्लांट्स कैक्टस की तरह उगते देखे होंगे जनरली, पर वो कैक्टस की तरह होंगे, कैक्टस नहीं होंगे। कैक्टस होंगे ओदा सेंट्रल पार्ट मोटा होंगे। फाइलोक्लैड्स होंगे ने फ्लैट टाइप ऑफ प्लांट्स होंगे ने, कैक्टस की तरह ओदे ऊपर भी कंडे होंगे हैं क्योंकि वो भी वाटर स्कैरसिटी च ग्रो हुए हैं ना, क्योंकि रोड ते कोई पानी देन थोड़ा ना जाता है, अपने आप ही ग्रो होंगे। देखो रोड साइड ते जनरली किकर ग्रो करता है या फाइलोक्लैड्स ग्रो करते हैं। फाइलोक्लैड एक फ्लैट प्लांट होंगे बेटे जिहदे इस तरीके दे नाल जिहड़े स्टोरेज है, मतलब एक दे ऊपर एक जदों ये गिरिया तो ये नवे प्लांट नूं ओरिजिनेट कर दिंदा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करके। ठीक है, दैट इज द फाइलोक्लैड। मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम दे अंदर आ जाता है। क्लियर है बेटे? हुण अपने कोल रूट खत्म हो गया, स्टेम खत्म हो गया, इस तो इलावा अपने कोल लीफ है जिहड़ा वो आपां पूरा कर चुके हैं। फ्लावर है जिहड़ा वो मैं सिर्फ इनफ्लोरोसेंस दस्सिया है कि पोजीशन ऑफ द फ्लावर, we can say the arrangement of the flowers on the floral axis is called as the inflorescence। ठीक है, तो बेटे कुछ इंपॉर्टेंट विनेशन इंपॉर्टेंट है, फाइलोटेक्सी इंपॉर्टेंट है, इनफ्लोरोसेंस है जिहड़ा वो इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन ए पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। पेपर के अंदर आ जाता है व्हाट इज विनेशन, गिव एग्जांपल। व्हाट इज फाइलोटेक्सी, गिव एग्जांपल या ये टाइप्स भी दसो। व्हाट इज इनफ्लोरोसेंस, एक्सप्लेन विद इट्स टाइप्स। ठीक है, तो इनफ्लोरोसेंस आ गया पोजीशन ऑफ ए फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। दो तरह की होंदी है, रेसिमोस एंड सायमोस। ठीक है, रेसिमोस के अंदर जिहड़ा मेन फ्लोरल एक्सिस है वो अनलिमिटेडली ग्रो करता जाता है, ए दी फॉर्म च ग्रो करता है, एंड सायमोस के अंदर एक लिमिटेड ग्रोथ करके फिर वो अपने लेटरल ब्रांचेस ते फ्लावर बना लेंदा है एंड मेन एक्सिस के ऊपर भी फ्लावर डेवलप कर लेंदा है। क्लियर है? हुण आपां चलदे हां टुवर्ड द फ्लावर। ठीक है, हुण आपां नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द फ्लावर। फ्लावर तुसी क्लास 10th ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्लास 10th ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ, फिर we will move toward the newer terms। ठीक है, फ्लावर तुसी क्लास 10th ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਫਰਸਟ ਹਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੈਕੰਡ ਹਾਫ ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਿਊਮਨ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, फर्स्ट हाफ के अंदर ਤੁਹਾਡਾ फ्लावर ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ फ्लावर ਕੀ ਹੈ। आ मेरे कोल स्टेम है, आ मेरे कोल लगा लो लीफ का एक्सेल है, यानी कि पेडिसल ऑफ द लीफ आ गया। ठीक है, पेडिसल नहीं हुंदा, लीफ के अंदर की हुंदा है, कल दस्या सीगा मैं, दसो भाई एनीवन। लीफ के अंदर पिटियोल हुंदा है बेटे, पेडिसल फ्लावर के अंदर हुंदा है, दिस इज द पिटियोल। ठीक है, पिटियोल के ऊपर अपने को लीफ आ गई। ठीक है, अगर सेम लगा लो, अगर मैं इथे ग्रो करावा एक पेडिसल तो इथे मेरे को आ गया एक फ्लावर। ठीक है, हुण आपां फ्लावर की है मॉडिफाइड शूट है, शूट नहीं अपने आप नु मॉडिफाई किया, फ्लावर के अंदर कन्वर्ट होगी। आ मेरी स्टेम है, आ हुण मेरी पिटियोल है, पेडिसल है, पिटियोल वाज इन द लीफ, दिस इज पेडिसल। ठीक है, पेडिसल के ऊपर एक फ्लावर है।
पेडिसल हो गया। फ्लावर दे अंदर कलरफुल पार्ट्स ने जेड़े ओ प्रेजेंट हुंदे हैं। सच कलरफुल पार्ट्स आर कॉल्ड एज द पेटल्स। ठीक है, फ्लावर दे नीचे ग्रीन कलर दे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हुंदे हैं जिन्हां नूं आपां कहने आ सेपल्स। क्लियर? ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड एज corolla. Group of sepals is called as calyx. पेपर दे अंदर सेपल पेटल नहीं लिखिया आंदा, calyx एंड corolla लिखिया आंदा। ठीक है, आप फ्लोरल फार्मूला डिजाइन करांगे ओदे अंदर भी आप सी ते सी यूज करांगे, पेटल्स एंड सेपल्स यूज नहीं करांगे। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। क्लियर है? हुन आ जाओ बेटे, दिस इज पेडिसल, डंडी। फ्लावर दो तरह के होंगे हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओ फ्लावर जिदे अंदर सिंगल सेक्स प्रेजेंट होए, ईदर द मेल और फीमेल, दैट इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जिदे अंदर दोनों ही प्रेजेंट होन, दैट इज कॉल्ड एज बोथ मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर है? तो अपने को फ्लावर है जेड़ा ओ की है रिप्रोडक्टिव यूनिट है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे लई एंजियोस्पर्म्स दे अंदर प्रेजेंट है। क्लियर? फ्लावर दे अपने को की है डिफरेंट काइंड ऑफ द वर्ल्स ने जेड़े वो प्रेजेंट है, जिन्हों आप केलिक्स करोला कहने आ। दो जेड़े पार्ट रह गए, केलिक्स करोला, सेपल्स एंड पेटल्स हो गए। क्लियर? दो जेड़े पार्ट रह गए वो की ने, मेल एंड फीमेल पार्ट ने। हुन आप आने आ मेल पार्ट की तरफ। इन द सेंटर ऑफ ए फ्लावर, मैं बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाऊंगी, मैं दोनों पार्ट्स ही दिखाऊंगी इहदे अंदर। जेड़ा मेल पार्ट है ओदा नंबर हमेशा ज्यादा हो सकता है या हुंदा भी है, दैट इज कॉल्ड एज स्टेमन। मेल पार्ट इज कॉल्ड एज स्टेमन। स्टेमन दे दो पार्ट्स हुंदे ने, ऊपर वाला हिस्सा एंथर, नीचे वाला हिस्सा फिलामेंट। फिलामेंट अटैच किथे हुंदी है? अंदर जाके ओवरी दे नाल ही अटैच हुंदी है। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋक्सिमल पार्ट है क्योंकि ये अंदर अटैच है, तो ਇਹਦੇ नेड़े है, नेड़े वाला पार्ट प्रॉक्सिमल पार्ट। दूर वाला पार्ट डिस्टल पार्ट। पेपर च बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जेड़ा एंथर दे कोल है वो प्रॉक्सिमल होना चाहिए। नो, जेड़ा फ्लावर दे कोल है वो प्रॉक्सिमल होंदा है, फ्लावर तो दूर है जेड़ा वो डिस्टल पार्ट है। क्लियर है बेटा जी? ओके, तो दिस इज द एंथर, दिस इज फिलामेंट। एंथर दे अंदर प्रेजेंट हुंदे ने पोलन ग्रेन्स, जो कि आपा क्लास 12th दे अंदर बहुत डिटेल च भी करांगे, बट हुन लई इतना याद रखना है कि पोलन ग्रेन्स हेल्प्स इन द पॉलिनेशन। दे आर द मेल स्ट्रक्चर्स लाइक द स्पर्म्स इन द ह्यूमन मेल, पोलन ग्रेन्स आर देयर इन द प्लांट्स। क्लियर है बेटे? फ्लावर्स दे अंदर सेंटर दे अंदर इहदा फीमेल पार्ट जिन्हों आप पिस्टल कहने आ, पिस्टल। एंड एंड्रोशियम इज द वर्ड यूज्ड फॉर द male, gyno word used for the female. Pistil दे तीन हिस्से है, stigma, this is style and this is ovary. ovary दे नीचे एक swollen part है जिन्हों अपन कहने आ thalamus। ठीक है बेटे? the swollen part below the ovary is called as thalamus। ऊपर एक पार्ट प्रेजेंट है ओवरी, ओवरी दे ऊपर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिन्हों आप कहने आ स्टाइल। स्टिग्मा ओ जगह हुंदी है जिथे पोलन ग्रेन्स आके गिरदे हैं, स्टाइल ओ जगह हुंदी है जिदे थ्रू पोलन ग्रेन्स अंदर जांदे हैं, एंड मेरे को ओवरी ओ पार्ट हुंदा है जिदे अंदर रिप्रोडक्शन हुंदी है। यानी कि ओवरी इज दैट पार्ट जेड़ा कि लेटर ऑन फ्रूट दे अंदर कन्वर्ट होगा। क्लियर है? दिस इज द फ्लावर जो कि तुसी क्लास 10th दे अंदर पढ़ के आए हो। नेक्स्ट अपा नेक्स्ट क्लास दे अंदर करते हैं। ठीक है?